In this bar, you have to write down. Okay, then go discipline-wise search. Discipline-wise search. After opening this page, you have to go discipline-wise search. There are multiple options like general search, discipline-wise search about KGRS, FAQ, and so on. You have to go discipline-wise search. Over here, you can see there are multiple disciplines. Area, number 2, subject area, then subject subcategories, then HGRS category. In every of the bar, every of the option, you have to click over here. Then you will click over here. You can see that there are different types of groups: arts and humanities, biological and health sciences, education and HR. Because our area is education, you have to click over education and HR. Okay, this step is clear? Yes. On next subject area. Subject area, this is up to you. This is up to you. You can go multidisciplinary search, or you can go over here social sciences. This is up to you. There are multiple journals that are also in as a part of multidisciplinary, like education, like science, like history, like English. There are multidisciplinary journals. And you can also go social sciences. This is up to you. Option is available. Suppose I go social sciences. This is not compulsory. You can also go multidisciplinary. This is up to you. There are multiple journals that are available in social sciences, and also multiple journals of education are available in multidisciplinary. Okay, then you can go over here. Where you can go? Social sciences or education. At this area you have to go education, because archaeology, geography, other remaining disciplines are not your part. You have to go only on education. Then click over here education. Then at the last fourth part, there are categories. When I click over here, there are categories. These are W category and X category, Y category, and not recognized. At this part, from where you have to click? Good, W category. Only focus on W category. This is W category. Now, these are the options. First one is education and HR. Second is social sciences. Over here, you can also write down multidisciplinary. And third, you have to write down education. And last one, W category. Don't focus on X category and Y category. You have to only focus on W category. Then you can click over export. This is your next step, export. Okay, when you export, at the last of the page you can see that is download a file. Pause. Left side now you can see the Excel monogram. देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर एक अभी एक फाइल शो हुई थी. ये फाइल शो हुई थी अभी. ये देखिए, ये खुल जाती है. Then you have to click over here. Now this page is opening. At this page, this Excel file, and when you will open this Excel file, in front of this Excel file, focusing on your first topic, that was your area, that was teacher education, that was EC, that was, and multiple areas. Then when this file is going to open, this file is, although it is heavy, that's why it is taking too much time. Now this is opening. This is file. Yes, this is Excel file. Going over and vector view.
This is the file. You can see over here. These are all the name of journals. Exactly. These are the name of the journals of X category. Sorry, W category. This is the category. You can see over here. This is the category. Non-focused platinum. This is HEC recognized category. Okay. Then this is the name of the country. And next you can see. Okay. These are the main things. Then I am going to show in. Yes. सर तो बी कॉलम में ये जर्नल का नेम है या उसका पेज है? Sorry. जो बी कॉलम आ रहा है ये उसका पेज है 89 No. ये this is their international ranking. जी The journal whose name is Computer and Education in the field of education. This is highest level. जी Then after that, review of education research. Then educational researcher. Then journal of educational behavior. These things are, although these things are this one and this one and this one, these are not related to us. We have to focus on the name of the journal, its category and its ranking. Just this one category. We have to focus. Main focus is on journal name, and other focus is its category, W category, X category, and Y category. These are our concern areas. Okay. Now our next step is to focus the name of the journal, focusing on my area. If my area is related to teacher education, if my area is related to STEM education, if my area is related to sustainable development goals, if my area is related to curriculum development, then I have to focus on my area and search the name of any of the 10 journals. Suppose my area is teacher education. Suppose, okay. Then in this name of the journals. Sir, can we choose educational psychology? Yes, definitely you can choose. First of all, I was told you that the education psychology or psychology is one of the big area. You can also focus education psychology. This is the name of the one of the journal. Okay, what was my area? My area was teacher education. Now these are the how much name of the articles. These are, I think, 17 नंबर का सर लिखा है Sir, child development. okay, just wait, just a minute. These are the name of 515 name of the journals that are in HEC W category international ranking. कितने हैं ये जर्नल्स के नाम? 515. ये लिखा हुआ है 515. ये है ये लिखा हुआ है. ठीक है. लास्ट इज काउंसलर एजुकेशन एंड सुपरविजन. ओके. मेरा एक एरिया था कौन सा? टीचर एजुकेशन. इसमें से मैंने देखना है कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इन 515 में से कोई से भी मैंने 10 जर्नल्स को ले लेना है. या मेरा एरिया था कौन सा? टीचर एजुकेशन के अलावा था करिकुलम का. मैं इसको सर्च करता हूँ क्योंकि इतनी लंबी फाइल है. मैं इसको सर्च करता हूँ कंट्रोल F. मैं करता हूँ किसको? टीचर एजुकेशन को. या मैं लिख देता हूँ टीचर. ठीक है. This is not compulsory that all of the students select teacher education. This is example. This is just example. If my area is curriculum, then I will search 10 articles related to curriculum. Teacher. This is I have write about teacher. This is the name of the journal. Physical teacher. Next I search. This is journal of teacher education at number 17. This is one name of the one. Okay. What will be my next? Then I have to select this one. Select this bar. Okay. Then copy. Then this is at the right side of this journal categories. I click over here. New page will be open. Okay. I click over here. This is the new page, and I paste the name of that. This is journal of teacher education. Okay.
ये एक हो गया, ऐसे मैंने कितने इकट्ठे करने हैं? 10 इतनी सी बात। अच्छा फिर आगे क्या करना है? ये एक हो गया, फिर मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर फिर मैंने लिखना है दोबारा, ये लिखा हुआ है टीचर, मैं नेक्स्ट देखता हूँ टीचर कहाँ पर है, ये आ गया जनरल ऑफ टीचर, ये निकाल लिया। उसके बाद दूसरा कौन सा है? टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, ये दूसरा जनरल है। इसको ऐसे मैंने क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, ये कॉपी किया और दूसरी फाइल को मैंने ओपन किया और मैंने इसके अंदर उसको क्या कर दिया? ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरा दूसरा आ गया। ठीक है, ये मेरे दो हो गए हैं और मैंने कितने इकट्ठे करने हैं? 10 इकट्ठे करने हैं। अच्छा अब ये हो गया दूसरा, फिर मैं दोबारा इसी फाइल पर जाता हूँ और मैं दोबारा जो लिखा हुआ था मेरे पास, मैं इसको तीसरे को सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा मैं इसको ऐसे इसको कलर भी दे सकता हूँ कि मैंने ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इसको ये देखिए, ये मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये मैंने कलर कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं? उसके बाद मैं दोबारा, अभी मैंने दो किए हैं, दूसरे में दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि कलर इसलिए किया ताकि ओवरलैप ना हो, कि मुझे याद रहे कि मैंने इसको पहले ही क्या किया हुआ है, इसको मैंने पहले इसको सेलेक्ट करके मैंने फाइल के अंदर इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर टीचर, सिर्फ सारे टॉपिक्स टीचर से रिलेटेड सेलेक्ट किए हैं टीचर, मैंने सिर्फ टीचर एजुकेशन एरिया है ना, मैंने उसको फोकस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये आ गया टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, ये एक और जर्नल है, या वो पहले वाला था? ये हो गया टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, कंटिन्यू, यस, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन। अच्छा फिर मैं इसको देखता हूँ नेक्स्ट को, ये देखिए मेडिकल टीचर, क्योंकि ये हमारा रिलेटेड नहीं है इसलिए हमने इसको ऐड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें यूरोपियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये आपके पास ऐसे करते जाएंगे ना, कितने आर्टिकल्स आप जर्नल इकट्ठे हो जाएंगे? 10। अब इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गए। ठीक है, ये मेरे 3 को मैंने किया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा मैंने 3 किए हैं ऐसे, आपने ऐसे ही 10 करने हैं। जब आपके पास ये लिस्ट बन जाएगी, ये लिस्ट बन गई आपके पास 10 की, आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ओके नेक्स्ट स्टेप 10 इकट्ठे कर लिए, मैं इनको फोकस कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है आपने साई मैगो, ये मैं लिख रहा हूँ गूगल, then SCIMAGO, this is SciMago, this is SciMago। इसको देख लें आप कि स्पेलिंग, दिस इज फर्स्ट बार, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, SciMago जर्नल एंड कंट्री रैंकिंग, ओके, दिस इज योर फर्दर स्टेप। नाउ दिस बार विल बी ओपन एंड ओवर हियर आई ऑलरेडी copy the name of the journal, then as the person is clicking over here I have to paste the name of that journal, journal of teacher education. This was the first in this Excel sheet from where I was selected the name of the journal, okay, then search over here, this is search bar, then you can search over here, click, then next the page will be open in front of you. This is the teacher education. Over here, if to some extent you have doubt that I am unable to search the name of the journal from Excel sheet, only select one journal and in this bar, in this page, you will see that there are further name of other journals related to teacher education. Okay, then first one is our concern was related to journal of teacher education. Then next name of journal is Journal of Research in Mathematics Education. This is to some extent, this journal is also related to education. Okay, then next is European Journal of Teacher Education.
This was the name of the journal that is already existed in HJRS list. You don't need to reopen this file again. Over here, you can right click at Journal of Teacher Education. Right click over here, then open in new tab. Click over here. Then you can see how much tabs are there. 3. Okay. First one is now. I close this tab. There are how many tabs? 2. First one is HJRS and second is SciMago. Then, because my focus is to Journal of Teacher Education. Listen to me. Okay, then right click over here, right click over here, then open in new tab. One click over here, then this bar, this page will be going to open in front of you. Then, meanwhile, this is the Journal of Teacher Education. Only you have to search this way. This is the best way. This is the appropriate way through which you have to send your paper and you have to search the paper if you are going to research. Okay. Then over here, this is written Social Sciences, United States. You can cross check that in Excel sheet. I can see what was the country of this journal? United States. This is cross check. Okay, next, what is your next step? Scroll down this and you can see ISSN number 00224871. This is the okay. Over here, if you want to search from HEC, over here you can write. This is the way of to make cross check. Google. HJRS. वही जो हमारा नाम था जनरल का, उसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया. इसको मैं यहाँ से सर्च करके क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो डिटेल ऊपर लिखी हुई है, क्या वो क्रॉस चेक हो रही है कि नहीं. यहाँ देखें, ये मैंने किसको खोला? HJRS को, HEC को. देखिए यहाँ पर कंट्री का क्या नाम है और वहाँ क्या था? SciMago में. ठीक है, वहाँ उसका नंबर क्या था? ISSN नंबर ये लिखा हुआ है. इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? सेम है. फिर उसके बाद रैंकिंग क्या है? W. अच्छा, यहाँ आपने एक और चीज ऐड करनी है. इसके अंदर से देखकर SciMago वाली रैंकिंग से देखकर उसके अंदर आपने देखना उसकी कैटेगरी क्या है. आप इसको जब नीचे लेकर जाएंगे तो ये उसकी कैटेगरी ये आई हुई है. ये देख रहे हैं बार, मुख्तलिफ जर्नल का यहाँ बार डिफरेंट होगा. इसका मतलब ये है कि इन ग्रीन है, इट्स मीन कि ये जर्नल इंटरनेशनली एट द टॉप ऑफ टीचर एजुकेशन सिंस 1999 से 2023 तक ये जर्नल क्या है? दुनिया में सबसे टॉप पर जा रहा है. ठीक है. अच्छा, कोई भी पेपर इसका बाकी आएंगे, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस बार के ऊपर, किसी भी जगह लेकर जाए, वहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3 या Q4 खुद ब खुद ही आ जाएगा. सपोज करें ये मेरे पास कर्सर है, मैं इस कर्सर को लेकर जा रहा हूँ 2023 में. क्या लिखा हुआ गया? अब मैं नहीं लेकर आया, ये इन्होंने इसको किया हुआ है कि ये 1999 के अंदर 2003 में देखिए Q1 2, ये देखिए ये Q1 कैटेगरी में आ रहा है. और Q1 कैटेगरी रैंकिंग दुनिया में सबसे टॉप क्रॉस रैंकिंग है. अच्छा, जब आप लोग PhD करेंगे आप लोग, दिस इज द रिक्वायरमेंट कि आपने PhD के लिए एक पब्लिकेशन हो आपकी W कैटेगरी की या X कैटेगरी की, एक पब्लिकेशन आपका थीसिस ओके. Y कैटेगरी की 2 पब्लिकेशंस, फिर आपको जो ना वो आपका थीसिस ओके, वरना नहीं. एक पेपर किसका हो? X कैटेगरी का, तो आपकी एक इवैल्यूएशन बाहर शो करानी है, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपके पेपर हैं 2 Y कैटेगरी के तो आपको 2 एक्सटर्नल की आपको जरूरत पड़ती है, रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है. ठीक है. ये आपने जो ये Q1 रैंकिंग है, ये आपने इसके आगे यहाँ पर खुद से लिख लेना है. यहाँ पर खुद से आप लिख लेना Q1.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम हैं साइलैंगो के ऊपर। अब आपने यहाँ से लिखा हुआ है पब्लिश दिस जर्नल, कहाँ पब्लिश दिस जर्नल कहाँ लिखा हुआ है? ये होम पेज है, ये आपने जाना है होम पेज पर। अब आपका काम शुरू होता है कौन सा? असाइनमेंट वाला। यहाँ से जाना है, आपने पेपर पब्लिश करवाना है, फिर जाए होम पेज पर जाए, फिर आपने यहाँ से जाना है होम पेज पर, जिसका फोकस था टीचर एजुकेशन। उसने क्या करना है? एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर जाना है आपने होम पेज के ऊपर। ये होम पेज किसका है? नो, जनरल। अल्लाह भला करे आपका। ये जनरल होम पेज है, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही थी कि अभी बता दें कैसे करना। ये है होम पेज। ये हर एक का ऐसे होगा, हर एक का जो भी आप साइलैंगो के अंदर खोलेंगे आपको उसका होम पेज मिल जाएगा। ये उसका होम पेज खुल गया। इस होम पेज के अंदर अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से, जो आपको कंफ्यूज कर रहा था। ये उसका होम पेज खुल गया। यहाँ से आपने देखना है बात, में इंटरनेट नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझ। जाहिर बात है, तो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना हम। ये एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यही तो चीज़ें करने वाली हैं। ये उसका होम पेज है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ सब कुछ बता रहे हैं। उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ये देखिए इम्पैक्ट फैक्टर 3.91 और ये है उसका 5.2, ये है 5 साल में। अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर आप इसका अंदाजा लगा लें कि है आपका पेपर, एक पेपर इस पेपर में छप जाए, इस जर्नल में छप जाए, एज कंपेयर टू दिस पब्लिकेशन you have published 50 papers in Pakistani journals. You have published 50 papers in Pakistani journals. एक पेपर आपका 50 पर भारी है। इसकी इतनी बात है जो कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल वाला आपका पेपर है। इसकी वजह से लोग की प्रमोशन और बीसीशिप और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े एनजीओ आपको ऐसे पिक कर लेते हैं जिसने इतना काम किया होगा। इसलिए मेहनत करें, बजाय कि 50 पेपर पब्लिश करवाएं, इसमें एक पेपर निकल पब्लिश करवा देना, आपको 50 पेपर भारी है। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको काम करना आए। कल को आपको पता ना हो कि हमने पेपर सर्च कैसे करना है, हमने उसको पता कौन सा है कि फेक कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है, मेहनत कैसे करनी है, ताकि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, अब आपका काम अब शुरू होता है। होम पेज पर चले गए। अच्छा, होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर देखें आपको लिखा हुआ है ये वो पेपर्स हैं जो कि लोगों ने पब्लिश करवाए हुए हैं। अर्ली कैरियर टीचर सेंस ऑफ प्रोफेशनल एजेंसी इन द क्लासरूम एंड एसोसिएशन विद देयर परसेप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विजन एंड स्कूल साइज। ये आपका है एक पेपर जो कि किसी ने लिखकर पब्लिश करवाया हुआ। सारी डिटेल इस तरह के आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड 10 उठाने हैं पेपर, सिर्फ 10 ये वाले उठा लेने हैं। बस इनको कॉपी करना है, इनको जो कि आपको लगता हो कि मुझे इसमें से कोई टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मुझे कोई भी चीज़ मिल सकती है। सर ये उस पेपर लॉक भी होते हैं, ऐसे नाम भी ज़्यादा आप मुझे कहिए। हाँ, और ये डाउनलोड होते हैं, वो हो जाएंगे डाउनलोड। वो ना एक वो येलो ग्रीन और वो ब्लैक वाला लॉक है। हाँ, वो उसका तरीकाकार मैं बताता हूँ आपको, पहले ये समझ लें, मैं वो बता देता हूँ। हाँ, ये कॉपी ऐसे ही होगा। ये इसको सेलेक्ट करें, ये देखें, ये सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और ये वाला पेज बना हुआ था आपका, ये देखिए ये पेज था ना आपका, ये वाला पेज था। अब इसके अंदर ये इसको वो कर लें, सेलेक्ट कर लें कि मेरे लिए ना ये हैं 10। अब यहाँ पर ना 10 लाइन डाल दें। यहाँ पर ये इंसर्ट राइट क्लिक करें यहाँ पर और आपको इंसर्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें इंसर्ट, ये आ गई आपके पास एक। तो इस तरह आपको अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, कंट्रोल प्लस करते जाएँ, ये सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करते जाएँ। आपकी 10 मिनट को कंट्रोल प्लस करते जाएँ, कंट्रोल प्लस 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 आपकी 10 लाइन डाल देंगे। फिर आपने जो पेपर वहाँ से आपने वो कॉपी किया होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या कर दें, बस ये आपका पेस्ट हो गया। बस इसी तरह आपने यहाँ पर 10 आपकी जो है ना, इसको निशान लगा दें कि ये मेरा कौन सा है, ये मेरा मेन जर्नल का नाम है, इसको बोल्ड कर दें। 10 उठाने हैं या 5 उठा रहे हैं, 10 उठा 5 वाले मर्जी के। अच्छा, इसमें से अभी हमने एक उठाया, लेकिन वो उठाने वो हैं जो कि आपको उसमें से समझ आए कि ये मुझसे कुछ चीज़ें मैं अपने तीसरे बेसिस में कुछ चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। ये उन्होंने पर जांच करें और वो करें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, एक ले लिया, ये देखें द 5 P's ऑफ होलिस्टिक पॉलिसी डेवलपमेंट
अवे फॉरवर्ड फॉर इंग्लिश टीचर एजुकेटर्स, उन्होंने एक और दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट है द सोशल जस्टिस कोर प्रैक्टिसेस ऑफ फिलोपीडिया एजुकेटर्स मॉडिफाइड डेल्फी स्टडी। ये इस तरह आपने, अच्छा यहाँ पर आपके पास फर्दर आ जाने हैं। ये है करंट इशू, ये है, देख रहे हैं। अच्छा आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इसी साल को इनका निकला हुआ इशू का आपको वहाँ सारे इशू लिखना ये मिल जाएंगे। ये वॉल्यूम 75 में ये बता रहा था ना आपको, इशू 3, ये देखें। इसका पिछला कौन सा होगा? वॉल्यूम 74 इशू 2। उससे पिछला कौन सा होगा? वॉल्यूम 70 इशू 1। ठीक है ना? ये अच्छा हो एक साल में 4 इशू निकलते हैं आमतौर पर। जनवरी फरवरी मार्च एक इशू मार्च में, फिर अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, नवंबर दिसंबर जाके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाके चौथा। एक साल में 4 क्या निकलते हैं? वो इशू निकलते हैं। ठीक है। अच्छा ये उसने डिटेल लिखी हुई है कि उसने वो इस साल जो निकले हैं इशूज, वो कहते हैं कि यहाँ व्यू इशूज कंटेंट, यहाँ से ये उसकी आप लिस्ट निकालें। ये अभी हम एक जर्नल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह के आपने कोई और खोल लीजिएगा, ये खोल रहे हैं उसके पूरे ये देखें ना इशू ये लिखा है ऑल इशूज। अगर आपने उसी के 5 इशूज लेने हैं या पिछले 4 लेने हैं तो आप उसको क्लिक करें तो सारे 4 आपके सामने ओपन होकर सामने आ जाएंगे। जो आपको उसमें से रेलेवेंट लगते हो आप उसमें जो देखें। ये है अटेंशन टू इक्विटी विद एजुकेशन एडमिशन प्रोसेस। क्योंकि हमारा ये जो जर्नल का नाम था क्या था? टीचर एजुकेशन, इसलिए इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो आर्टिकल होगा उस आर्टिकल के अंदर इट इज़ मैंडेटरी दैट द वर्ड टीचर शुड बी अवेलेबल। अदरवाइज हमारा पेपर हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का और वो हम भेज दें इस जर्नल के अंदर तो हमारा पेपर रिजेक्ट करके फेंक देंगे। हमारा पेपर हो उसका करिकुलम का वो भेजें हम टीचर एजुकेशन वाले जर्नल में, वो उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट करके बाहर भेज देंगे। इसलिए ये होती है कि उसको कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपने जर्नल सेलेक्ट किया आपका टॉपिक भी आपका थीम भी उससे क्या हो? रिलेटेड हो। क्लियर हो गया? ये आपने करके आपने जब नेक्स्ट आना है ये असाइनमेंट आपने या ये वाली जो भी आपको लगती है आसानी तो इसको करना है या उसको करना है, आपने वो बना कर लेकर आए। ठीक है।